Assalamu alaikum dear learners and a very good evening. Welcome to Ababil English Level 1. Congratulations on completing successfully 2 weeks of the course. I hope that you're really enjoying it and learning a lot of new and interesting things to use them in your daily communication. In week 3, we are going to use all the concepts that we have discussed so far to create something bigger. Yes, I'm talking about essays. In this week, we are going to discuss in detail the essential components, the elements, and the toolkit that's required to construct a beautiful, perfect essay. In the last video, we have discussed about vocabulary building. We talked about the root words, talked about the meanings of new words. How can we construct new words if we have one root word? How can we imply and infer different meanings of new unknown words even if we don't know what they mean, just by understanding the context or by knowing the root word. We'll be focusing more on vocabulary and vocabulary building parallel with the essay writing practices. So let's dig deeper. Today we're going to describe in detail what is the toolkit that's required to construct a perfect essay. We're going to practice more and more by using all the elements of English language that we have discussed so far, and this is going to cover everything that we have learned in past 2 weeks. So before digging deeper, let's first discuss what an essay really is and how and why is it used. So basically, essay is a short piece of writing. It has a focus on a single subject. It includes an introduction of the subject. Then comes the body, in which the author is going to give the arguments as per his understanding of the subject, and then comes the conclusion, in which the author is going to summarize the findings or the argument or the facts that he stated in the essay. Essays are of different types. In different grammars, you might read more than 5 types, but generally speaking, these 5 are the major types of essays: descriptive, narrative, expository, compare and contrast, persuasive, or argumentative. We're going to discuss each one of them in detail. But let's first start with what descriptive essays are, how can we write them, what are the essential elements that we need to include in descriptive essays, what could be possible topics, how can we categorize those topics, and how can we write a perfect descriptive essay. We're also going to discuss what is the difference between description and a descriptive essay. Quite interesting, yeah? So let's start. So descriptive essays is a powerful way to communicate an experience that you've had or illustrate a subject in which you have expertise. Whether you plan to write a personal essay, subjective account, or more rigorous description of a given subject, the descriptive essay examples are there to guide you in the coming slides. Descriptive essay, as the name implies, it's a form of essay that describes something. It gives the description of something. In this genre, students are assigned the task of describing different maybe objects, maybe different things or places or experiences, maybe different persons or situations. And the learners then use sensory information to enable the reader to use their 5 senses of touch, taste, smell, hearing, and sight to understand the topic of essay. Notice what I've used: sensory information. Sensory information is obviously collected by these 5 senses that we use all the time in our daily lives to sense information from our environment. And whatever we sense through whatever sense of touch, smell, hear, see, etc., we are going to describe different topics and categories in that descriptive essay. We're going to touch all the details about all these types that I've mentioned here, but today we are going to focus more on the toolkit that required
to construct all these essay types. So what are the elements? How can you structure your essay? What is the best standard format? How to construct and build a perfect structure of that essay? What are the elements? How can we use them? In what combination? And a lot more. But first, remember what I said? I said there is a difference between description and a descriptive essay. What's that? Description could be just a paragraph, or it could be longer, as needed to fully describe the thing. However, the descriptive essay has 5 paragraphs, and we are going to follow a standard 5-paragraph format in here, although there are more. Some have more than 5, some have less than 5, but there is a standard 5-paragraph essay format. And it's written in a coherent way with a good thesis statement at the end of the introduction, then the body paragraphs, and then comes the conclusion. And we are going to discuss how. So let's move further. I talked about elements of an essay. What do I mean by that? Elements mean components that are used to construct a standard good form of essay. For that, you have to plan. When you look at a topic, you make mental notes. You might need a pen and paper or a rough sheet to write your random ideas on that. You need to plan what tone are you going to use in the essay, according to the subject, of course. What is the style that you're going to use? Why are you writing it? Understand the purpose before you even plan for the essay. What is the subject? How are you going to come around with the different ideas around that subject? What tone are you going to select? What is the theme of that essay? How are you going to construct an outline? Are you going to use humor or satire? Or it's going to be a serious factual description, arguments, etc., etc. There's one more thing that I haven't mentioned here. Elements of an essay also include correct grammatical usage, which means the tenses. Remember the tenses that we discussed in the first week? All of them are going to be in practice, in use, in the real time when we're going to discuss and practice how essays are written. In all those tenses, remember the usage. I recommend that if you are forgetting something from in the middle, go back to the lectures, go back to the formulas. If you have written them in somewhere in your notebook, go back to them, understand, revise the concept, revise your phrasal and modal verbs, revise your helping verbs, your main verbs, revise your tenses, revise the sentence composition. Also revise the figures of speech. We talked about similes, personification, metaphors, idioms. We talked about prepositions. We talked about other parts of speech. You need to revise all of them because we are going to use each one of that element in constructing a great essay. Very important question. How can we craft an awesome essay structure? Before we move on to this one, let's describe very briefly what is the quality of a descriptive essay. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, descriptive essay में हमेशा किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करें. वो चीज़ जगह भी हो सकती है, कोई डिफरेंट कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई वाक़या हो सकता है, कोई ऐसा इंसिडेंट या इवेंट हो सकता है जिसको आपने डिस्क्राइब करना है. डिस्क्राइब करने के लिए उसमें 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए. एक तो उसको बहुत क्लियर कट और कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. उसमें इमेजरी यूज़ करें इस तरीके से कि रीडर भी इमेजिन कर सके लाइक ही वाज देयर इन द सिचुएशन, और वो सारी उस चीज़ को, उस इवेंट को, उस जगह को, चीज़ को फील कर सके. As far as the clear and concise language is concerned, it's necessary to describe things precisely. Imagery is used to make things seem real and remarkable.
you have to use 5 senses. Remember I said 5 senses? Those are used to create imagery or a mental picture. I think this is more precise. This word is more precise. Mental picture is built by using 5 senses or the imagery, and that's easier for the reader to understand what was actually going on in that situation, and that makes your descriptive essay awesome. We've talked about what is the difference between a description and a descriptive essay. Let's understand the toolkit to craft an essay structure. रिमेंबर हमने बात की थी कि हम एक 5 पैराग्राफ का स्टैंडर्ड ऐसे फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो करेंगे. 5 पैराग्राफ्स में से क्या होता है? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि फर्स्ट और लास्ट में क्या होता है. पैराग्राफ 1 में इंट्रोडक्शन है. ब्रीफली समराइज योर टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस क्या है? इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी कहते हैं इसको थीसिस स्टेटमेंट भी कहते हैं या थीसिस सेंटेंस भी कहते हैं, और इसको टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं. इसमें आपने ये बताना होता है कि ये ऐसे किस चीज़ को डिस्क्राइब करेगा. दिस गिव्स द रीडर एन एक्सपेक्टेशन कि उनको वो क्या क्या इस ऐसे में पढ़ सकेंगे. सो उनको एक जनरल आइडिया हो जाता है. जैसे मैं अपने हर लेक्चर के शुरू में पहले रीकैप करती हूँ कि हमने पीछे क्या पढ़ा था, एंड देन बिफोर मूविंग ऑन मैं एजेंडा डिस्कस करती हूँ कि हम आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे. सो इट्स ईजियर फॉर यू टू नेविगेट एंड रिमेंबर कि अच्छा इसमें ये था. सो इसी तरह आपने ऐसे में भी रीडर्स के लिए नेविगेशन आसान करनी है. नेविगेशन मीन्स कि आपने डायरेक्शन ढूंढना उनके लिए आसान कर देनी है. ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि हैप हैजर्डली आप शुरू कर दें ऐसे और उसको समझ ही ना आए कि एक्चुअली किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. व्हाट शुड आई बी एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. तो वो जो एक्सपेक्टेशंस आपने सेट करनी है रीडर की, वो बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ में करेंगे. इंट्रोड्यूस करेंगे सब्जेक्ट को. कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम इंशाल्लाह इसी वीक में डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन भी करेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे कि आपने सब्जेक्ट या टॉपिक जो भी आपको दिया हुआ है उसका इंट्रोडक्शन कैसे कराना है, टॉपिक या थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाना है. ये सारे रूल्स हम डिस्कस करेंगे. अभी हम सिर्फ फॉर्मेट को डिस्कस करें. फर्स्ट पैराग्राफ इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन. लास्ट पैराग्राफ और पैराग्राफ नंबर 5 इज़ अबाउट कंक्लूजन. कंक्लूजन में आपने जितनी चीज़ें ऐसे में डिस्कस की हैं, जितने भी आइडियाज़ डिस्कस किए हैं, उन सब को समराइज़ करके टॉपिक सेंटेंस को रीफ्रेज कर देना है. टॉपिक सेंटेंस को दोबारा प्रूव कर देना है कि सी यही बात मैंने शुरू में कही थी, अब मैंने इसके हक़ में इतनी लॉजिक पेश की हैं, सो साबित हुआ कि ये बात सही है. यू हैव टू डिस्कस कि पूरे पैराग्राफ्स, बॉडी पैराग्राफ्स में जितना भी मैंने आइडियाज़ सपोर्ट करने के लिए यूज़ किए हैं वो सब ठीक थे. सो फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ की बात तो हो गई. बाकी हमारे पास 3 पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ नंबर 2, 3 एंड 4. इन तीनों में क्या हो रहा है? पैराग्राफ 1 में जब आपने टॉपिक सेंटेंस का इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने अपना टॉपिक को लेके पूरा सेंटेंस बना दिया. फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स के ऊपर बात हो रही है तो आपने मे बी टॉपिक सेंटेंस में ये लिख दिया कि ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो हमारी हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं, या ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये मैं अभी उर्दू में वैसे ही जनरली एक्सप्लेन कर रही हूँ. कमिंग लेक्चर्स में हम इसको इंग्लिश के एसेस की लाइंस के साथ, इसको एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइप के एसे में थीसिस स्टेटमेंट किस तरह का होना चाहिए. जब आपने फर्स्ट पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया कि दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, such and such information is going to be discussed in the next paragraph. उसके बाद आपने वहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म किया. अगर आप टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर पर कंपोज कर रहे हैं सिस्टम में, तो आपने इंडेंटेशन देनी है उसमें. इंडेंटेशन का क्या मतलब है? इंडेंटेशन का मतलब है आपने जगह छोड़ दी. फॉर एग्जांपल हाफ लाइन में आके सेंटेंस ख़त्म हो गया, आपने उसके बाद वहीं से दोबारा सेकंड पैराग्राफ नहीं शुरू करना. आप एंटर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट लाइन से नया पैराग्राफ शुरू करेंगे. इसी तरह सेम गोज विद द एसेज ऑन द पेपर, वो भी ऐसे ही करेंगे ताकि पैराग्राफ्स क्लियर रहें कि अच्छा ये एक आइडिया ख़त्म हो गया, अब इससे रेलेवेंट दूसरा आइडिया. सेकंड पैराग्राफ में आप अपना टॉपिक सेंटेंस एलैबोरेट करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ में कहा था कि ट्रैफिक के कवानीन हमारी जान बचाने के लिए या हमारी हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं, तो अब आपने उसके हक़ में दलील देनी है. कोई एविडेंस प्रोवाइड करें, किसी की कोटेशन लिख दें, किसी
कोई एग्जांपल दे दें कि जैसे एक वाक़या मैंने देखा, उसमें ट्रैफिक की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही थी कवानीन की, तो एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरा, जान चली गई या कोई जानी माली नुकसान हो गया वगैरह वगैरह। एक और एग्जांपल दे दें जिसमें ये साबित कर दें कि एक ऐसी जगह पे मैंने देखा जहाँ पे ट्रैफिक के रूल्स फॉलो हो रहे थे, हालांकि वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं था, तो वहाँ पे हादसे से लोगों की जान बच गई, हादसा होते होते बच गया, बिकॉज़ अगर एक इंसान को ट्रैफिक सेंस नहीं भी था तो दूसरे ने वहाँ पे ट्रैफिक कानून की वायलेशन नहीं की और उसकी वजह से जान बच गई। सो ये एक दूसरा एविडेंस है। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ में आप डिफरेंट एविडेंस देते हो, जो आपका टॉपिक था उसको सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट दलील देते हैं, लॉजिक पेश करते हैं कि ये भी एक एविडेंस है इसलिए ज़रूरी था, ये भी एक एविडेंस है इसलिए ज़रूरी था ट्रैफिक का कानून, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट मेक श्योर कि आप जिस भी पैराग्राफ में जो भी दलील दे रहे हैं, यू हैव टू कनेक्ट दैट विद योर टॉपिक सेंटेंस, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी। और बिल्कुल लास्ट में जब आप कंक्लूड कर रहे हैं तो आप अपना थीसिस स्टेटमेंट या टॉपिक सेंटेंस दोबारा से समराइज करेंगे कि इन सब दलाइल की रोशनी में, in the light of all these discussed facts and figures, we are concluding that, or we infer that, or we summarize that traffic rules are mandatory to save human lives. It's just for the sake of an example. हम ये बिल्कुल एक परफेक्ट कंस्ट्रक्ट किया हुआ ऐसे भी इसमें रीड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल समझाने के लिए ये बता रही हूँ। और आपने जितने भी आइडियाज़ पेश किए थे या जितनी लॉजिक्स या फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए थे, उसमें ये भी लिख सकते हैं कि हर साल ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से इतने लोगों की डेथ हो जाती है, इतने लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, इतने लोग हैंडीकैप या क्रिपल्ड हो जाते हैं, दे लूज एनी ऑफ देयर बॉडी पार्ट, कोई आर्म लूज़ कर देता है, कोई लेग्स लूज़ कर देता है, वगैरह वगैरह। जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप समझते हैं, जितने लॉजिक उसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंस आप दे सकते हैं, वो देंगे और कंक्लूजन में उसको कंक्लूड कर देंगे। For example, one of the most common examples of descriptive essays is my best friend. So यहाँ पे मैंने अपने एक स्टूडेंट का लिखा हुआ ऐसे यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है। आपका काम ये है कि you have to pause the video here and look for the transition words if she has used any. यहाँ पे कोई transition words use हुए हैं तो आपने उनको नोट डाउन कर लेना है अपने पास, और अगर नहीं हुए तो आपने सजेशंस लिखनी है अपनी कि कहाँ कहाँ पे ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। इसी तरह एक और स्टूडेंट ने विजिट टू द डेंटिस्ट ऑफिस, मैंने कहा था कि हम किसी जगह किसी इंसिडेंट के बारे में लिख रहे होते हैं डिस्क्रिप्टिव, तो उसने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया। यहाँ पे भी मैंने इनके दोनों स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। इसमें भी यू हैव टू फाइंड आउट एंड आइडेंटिफाई कि यहाँ पे कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं। अगर किए गए हैं तो उनको आपने नोट डाउन कर लेना है। ऑलराइट, मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन जो है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाल दिए हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन यूज़ हो सकती है। किसी इंसान के बारे में हो सकती है, किसी जगह के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में, किसी एनिमल के बारे में, किसी के बिहेवियर या ऑक्यूपेशन के बारे में। ह्यूमंस के बारे में इट्स मच हार्डर टू टेल कि क्या बताएंगे उसमें, बट ओवरऑल उसमें हम उसकी अपीयरेंस की बात कर सकते हैं, उसकी आदतों की, मिजाज की, उसकी मूड की, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या खसूसियात हैं उस इंसान की। इन चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन दी जा सकती है। किसी भी जगह के बारे में आप डिस्क्रिप्शन जब देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अ ट्रिप टू हुंजा वैली, तो उसमें आप क्या कहेंगे, यू हैव टू फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग दैट प्लेस कि उसका सबसे खूबसूरत मंजर क्या था, उसमें क्या इमेजरी यूज़ हुई थी, सूरज कैसे पहाड़ों के पीछे से निकलता हुआ दिखाई देता था, बादल आप उतनी ऊंचाई पे खड़े होकर बादलों को छू सकते थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो आई एम जस्ट टेलिंग द ब्यूटिफिकेशन एलिमेंट्स यहाँ पर, लेकिन पॉइंट ये है कि आपने फोकस करना है कि डिस्क्रिप्शन ऐसी होनी चाहिए कि रीडर को फील हो सके कि एग्जैक्टली अच्छा, अगर मैं गया नहीं हूँ तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। इस तरह से इवेंट्स में ऑब्वियसली लास्ट वेकेशन है या समर म्यूज़िक फेस्टिवल, ग्रेजुएशन डे, फर्स्ट डे एट कॉलेज, फर्स्ट डे एट स्कूल, इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप में आते हैं।
तो आपने उसमें भी यू हैव टू गिव अ मेंटल पिक्चर टू द रीडर कि क्या क्या हुआ, आप कैसे गए, कैसे शुरू हुआ, कौन लोग थे वहाँ पे, सेटअप कैसा लगा हुआ था, वगैरह वगैरह। एनिमल्स, बिहेवियर्स, ऑक्यूपेशन, इन सब के बारे में आपने डिस्क्रिप्शन जब लिखनी है तो आपने उसके सारे एलिमेंट्स इमेजरी के यूज़ करने हैं ताकि जो भी पढ़ रहा हो रीडर उसको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। मैंने कहा था कि जनरली 5 टाइप के मेजर ऐसे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग बहुत ऐसे को डिटेल में जाके यूज़ करते हैं कि अच्छा इसमें और 10-12 और अकसाम भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम्स लोग इसको मज़ीद ब्रेक डाउन करके कहते हैं देयर इज़ अ डेफिनेशन ऐसे। इसमें क्या होगा कि डेफिनेशन टाइप ऑफ ऐसे हैज़ टू डिफाइन डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट परसेप्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से फेमिनिज़म। फेमिनिज़म का मतलब क्या है कि अब आप फेमिनिज़म को डिफ़ाइन करेंगे, उसके हक़ में बताएंगे कि अच्छा एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है उसके बारे में, एंटी फेमिनिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं, फेमिनिस्ट ये कहते हैं, वगैरह वगैरह। डिस्क्रिप्टिव की तो हम बात कर चुके हैं कि उसमें आपने रीडर को फील कराना है अपनी डिस्क्रिप्शन से कि आप क्या चीज़ उसको बताना चाह रहे हो। नैरेटिव एसेज क्या है? नरेशन में ऑब्वियसली यू नो कि उसमें एक स्टोरी आपने बतानी होती है। स्टोरी में ऑब्वियसली इट्स डिफरेंट फ्रॉम शॉर्ट स्टोरी इन द सेंस कि इसको एक फॉर्मेट जो है वो ऐसे का इसमें फॉलो हो रहा होता है, तो उस सेंस में ये स्टोरी से डिफरेंट है। मैंने स्टार्ट में बिल्कुल कहा था कि एक्सपोजिटरी एसेज भी होते हैं। एक्सपोजिटरी एसेज का मकसद ये है कि दे हैव टू एक्सपोज थिंग्स इन डिटेल टू मेक द रीडर अंडरस्टैंड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। फिर मैंने कहा कि परसुएसिव या आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं। परसुएशन ऑब्वियसली जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि परसुएड करने के लिए या कन्विंस करने के लिए किसी चीज़ के बारे में आप उसको ऐसे में लिखते हैं। इट इज़ मेंट टू कन्विंस द टारगेट ऑडियंस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि को एजुकेशन के ऊपर मजमून लिखें तो ये आर्गुमेंटेटिव भी हो सकता है और परसुएसिव भी हो सकता है। कैसे? आर्गुमेंटेटिव में या तो आप उसके हक में दलाइल देंगे या उसके ख़िलाफ़ देंगे, तो आप उसके कॉन्स गिनवाएंगे, उसके डीमेरिट्स गिनवाएंगे, उसकी बुराइयां गिनवाएंगे कि इसमें ये भी ख़राबी है, ये ख़राबी है, ये भी ख़राबी है, इस वजह से ये नहीं होना चाहिए। अगर उसके हक में दलाइल देंगे तो कहेंगे कि नहीं इसमें ये पॉजिटिव चीज़ है, इसमें ये प्रो है, इसमें ये मेरिट है, इसमें ये भलाई है, तो आप इस वजह से इन 1 2 3 4 रीजंस की वजह से को एजुकेशन में जाना चाहिए, फ़ायदेमंद है। तो ये आर्ग्यूमेंट हो गए। और परसुएड भी ऑब्वियसली जब भी आप परसुएड करना है आपने तो या उसके ख़िलाफ़ परसुएड करेंगे, यू हैव टू कन्विंस द रीडर कि नहीं बहुत बुरा सिस्टम है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। और 360 डिग्री ऑपोजिट, यू हैव टू कन्विंस द रीडर कि नहीं को एजुकेशन बिल्कुल बुरा नहीं है, कुछ लोगों ने इसको मिथ्स बना के बुरा बनाया हुआ है, बट एक्चुअली इट्स गुड। एक्चुअली मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि इसमें ये अच्छाई भी हो सकती है। सो परसुएसिव एंड आर्गुमेंटेटिव भी कवर हो गया। समटाइम्स people also break down different essay types into analytical. Now what is analytical? Analytical essay is going to analyze something. For example, in literature or analytical essay, it analyzes a place or piece of literature from different angles. किसी भी चीज़ का तज्ज़िया कर रहे हैं तो उसमें analytical essay आ जाएगा। Cause and effect essays बहुत ही simple हैं। Cause and effect ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू मेक द रीडर अंडरस्टैंड कि किसी भी चीज़ के होने का कॉज क्या है और जब उस कॉज की वजह से वो चीज़ हो जाती है तो उसका अफेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल करप्शन के कॉजेज़ एंड अफेक्ट, फॉर एग्जांपल एनर्जी डाउनफॉल के कॉजेज़ और उसके अफेक्ट्स। तो उसमें भी ऑब्वियसली यू हैव टू डिस्क्राइब सिमिलर थिंग्स और डिस्क्राइब डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, यू हैव टू डिस्क्राइब डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट दैट। क्रिटिकल एसे में क्या हो रहा है? क्रिटिकल एसे भी सम हाउ आर्ग्यूमेंटेटिव से बहुत मिलता जुलता है, बिकॉज क्रिटिकल एसे इज रिटन ऑन अ लिटरेरी पीस टू एवेल्यूएट देम ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट और डीमेरिट। क्रिटिकल एसे का मतलब है तनकीदी मजमून, जो आप किसी पीस ऑफ राइटिंग के ऊपर, किसी अदबी चीज़ के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि शहाबनामा के ऊपर या विलियम शेक्सपियर के किसी ड्रामा पे, लेट्स से रोमियो जूलियट पर क्रिटिकल एसे लिखें,
तो आप उसके मेरिट्स डीमेरिट्स बताएंगे कि इसमें ये एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, ये मंजर निगारी, ये सीनरी इमेजरी यूज़ किया है शेक्सपियर ने, ड्रामे का मूड ऐसा है, उसका जॉनर ऐसा है, उसमें सीनरी, उसमें टाइम की सेटिंग, हिस्ट्री से ताल्लुक़, लोगों की ट्रेडिशन, ड्रामे का जनरल एक टोन, उसमें कैरेक्टर्स की आपस में जो बुनत है उसका कहानी का या ड्रामे का जो प्लॉट है उसके बारे में अगर आप तारीफ़ करें या तनकीद करें, दैट इज़ क्रिटिकल ऐसे। मैं इसलिए उर्दू में बता रही हूँ ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि ऐसे की टाइप्स हैं क्या। देन वी हैव अनदर टाइप जो बहुत सी ग्रामर्स में मेंशन है बट जनरल जो 5 मेजर टाइप्स हैं उसमें ऑब्वियसली नहीं है, उसको कहते हैं प्रोसेस ऐसे। ऑब्वियसली उसमें आप कोई भी प्रोसेस डिस्क्राइब करें, जैसे कि इंटरनेट पे बहुत मशहूर वेबसाइट है विकी हाउ, उस पर डिफरेंट प्रोसेस जो हैं वो बिल्कुल शॉर्ट ब्रीफ और कंसाइज स्टेप्स में बताया होता है कि कोई भी चीज़ करनी है तो क्या तरीका है, म्यूज़िक वीडियो बनानी है तो क्या तरीका है, वायलिन बजाना है तो क्या तरीका है, अपने घर का वॉश बेसिन या क्लॉग्ड बेसिन साफ़ करना है तो क्या तरीका है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो प्रोसेस ऐसे इज़ गोइंग टू आउटलाइन a process of making or breaking or maybe doing something, and so that the readers can fully understand and are able to do it after reading it. It's more like a manual. For example, let me give you a topic: how to fix your air conditioner, how to build a Lego machine, how to install an automatic washing machine, how to grill chicken, how to bake potatoes in the oven, something like that, जिसमें आपने प्रोसेस बताना है कि नंबर 1 पे आपने पोटैटोज़ को पील कर लिया, नंबर 2 पे उनके अंदर स्टफिंग कर ली चीज़ को ग्रेट कर लिया, ओवन को इतने टेम्परेचर पर सेट कर दिया, ओवन के अंदर इतने मिनट्स के लिए रखा, उसके बाद उसको निकाला, उसके बाद उसको सौते कर लिया, उसके बाद उसको सर्व किया गार्निश करके, और उसके साइड्स में आपने कौन कौन से डिप्स रखने हैं वगैरह वगैरह। सो इस तरह की प्रोसेस जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ करने के बारे में बता रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस ऐसे। देन वी हैव अनदर वन जिसको आप कहते हैं सिंथेसिस ऐसे। सिंथेसिस का क्या मतलब है? सिंथेसिस का लफ्ज़ी मतलब तो है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, किसी भी चीज़ को बनाना, बिल्ड करना। सिंथेसिस ऐसे में हो क्या रहा है? यू हैव टू सिंथेसाइज डिफरेंट आइडियाज़ टू मेक अ जजमेंट अबाउट देयर मेरिट एंड डीमेरिट। और इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि हम इनका नाम यहाँ पे मेंशन करें। इसी तरह बहुत सारी लिटरेरी साइड पे भी एसेज यूज़ हो रहे हैं, उनकी भी बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन हम उनको अभी फ़िलहाल कवर नहीं कर रहे। मैंने कहा था कि डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो डिस्क्रिप्टिव एसेज में यूज़ हो सकते हैं, उसमें से सिर्फ 2 अभी मैंने यहाँ पे लिस्ट मेंशन की हैं। जैसे जैसे हम आगे प्रैक्टिस करेंगे आई विल गिव यू अ लॉट मोर कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। आप उसमें से अपनी मर्ज़ी के टॉपिक्स चूज़ करके यू कैन गो अराउंड विद दैम, प्ले अराउंड विद दैम इन द PW। सो अगर आपने हॉबीज़ या प्रोसेसेस या ऑक्यूपेशंस बताने हैं तो उसके लिए भी एक मैंने लिस्ट दे दी है, और ये सब डिस्क्रिप्टिव की टाइप है, बिकॉज यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग, यू आर डिस्क्राइबिंग अ प्रोसेस, यू आर डिस्क्राइबिंग अ थिंग और एन ऑब्जेक्ट और योर हॉबी और योर ऑक्यूपेशन, तो कुछ भी उसमें ये टॉपिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। It's time for the daily dose now. In today's daily dose, I'm going to share a very interesting technique, and that's gonna help you focus more in your productive time. हम में से बहुत से लोगों के साथ ये मसला है कि पूरे दिन में हमारा अगर 12 घंटे का काम करने का स्पैन है, या हम 8 घंटे की 9 घंटे की जॉब करें कहीं पर, हमारा प्रोडक्टिव टाइम बहुत कम है। उस प्रोडक्टिव टाइम को ज़्यादा करने के लिए यू हैव टू रीवायर योर ब्रेन, बिकॉज नेचुरली अल्लाह ताला का निज़ाम है कि इंसान अपनी आसानी को या अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पसंद नहीं करता, और उसका दिल करता है कि वो कुछ भी ना करे, बस ले बैक एंड रिलैक्स करे। तो ये एक नेचुरल एक टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग्स में। ये अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा है कि इंसान की फितरत जो है वो आराम पसंदी और सहल पसंदी की तरफ ज़्यादा होती है, तो उसका दिल करता है कि वो कुछ ना करे। लेकिन ऑब्वियसली वी हैव टू सर्वाइव इन दिस कंपैरेटिव वर्ल्ड, इतना कठोर कंपटीशन है, तो हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज़ करना है। और मैक्सिमाइज़ कैसे करेंगे? I've come up with a technique. When I was in US, I did a certification
फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और वहाँ पे जो मेरी प्रोफेसर थी डॉक्टर बाबरा ओकले, she discussed a technique and I've been using it since then. It's been 7 years now that I've been using it, and it's really, really helpful. So I wanted to share it with you so that it might help you as well. Do you know what this is? Looks like a tomato, right? Actually, it is a tomato. टोमेटो को इटालियन लैंग्वेज में पोमोडोरो कहते हैं. पोमोडोरो, POMODORO, पोमोडोरो. पोमोडोरो, इस पोमोडोरो के ऊपर एक टाइमर आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि अलार्म क्लॉक्स पे होता है, या जैसे बेकिंग ओवन के साथ एक टाइमर लगा होता है. और ये टाइमर करता क्या है, इस टेक्निक को पोमोडोरो कहते क्यों हैं? फर्स्ट टाइम जिस साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को यूज़ किया था, उसने टोमेटो शेप का एक टाइमर बनाया था, और उसने इस टेक्निक को अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम करने के लिए यूज़ किया था. Let's discuss what steps can you use to maximize and enhance your work productivity. पोमोडोरो टेक्निक में सबसे पहला स्टेप है कि आपने लिस्ट बना ली, चेकलिस्ट बनाई कि आपने क्या क्या टास्क आज दिन में करने हैं. और ये मेरी डेली रूटीन है. समडे आई विल शेयर माय डायरी विद यू, जिसमें मैंने टू डू लिस्ट हर दिन की बनाई हुई है. आपके पास 5 काम है, 2 काम है, 10, 15, 20 जितने भी काम हैं, आप उनकी लिस्ट बनाओ. लिस्ट बनाने के बाद मैं जो पर्सनली पहला काम करती हूँ वो ये कि मैं उनकी नंबरिंग कर देती हूँ अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी. जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सबसे पहले, जो सबसे मुश्किल लगते हैं मुझे, जो करने का मेरा दिल नहीं करता, वो भी सबसे पहले. इस टेक्निक को कहते हैं ईटिंग द फ्रॉग. ये टेक्निक भी मैं किसी डेली रोज़ में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी. इस टेक्निक का नाम है ईटिंग द फ्रॉग, विच मीन्स कि जो चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, करने का दिल ही नहीं करता, वो आपने सबसे पहले करनी है, ताकि आप उसे करके सबसे पहले फ्री हो जाओ. सो यू हैव टू ईट योर फ्रॉग फर्स्ट. मुश्किल काम, प्रायोरिटी वाले काम सबसे पहले टू डू लिस्ट में, और आपने करने कैसे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आज का PW है, तो आपने उसमें ऐसे लिखना है, और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे लिखना, आपको समझ ही नहीं आती कि आप कहाँ से स्टार्ट करो. लेक्चर आपके पास है, ग्रामर आपके सामने है, टेक्निक्स, फॉर्मूलाज, टेंसेस, ट्रांजिशन वर्ड सब आपके पास हैं, लेकिन दिल नहीं कर रहा. क्या करना है आपने? अपना मोबाइल का टाइमर ले लें, अलार्म क्लॉक का टाइमर ले लें, और उसको 25 मिनट पर सेट कर दें. 25 मिनट्स ओनली. अलार्म को या टाइमर को स्टार्ट करें, और ऐसे के ऊपर रियली पुट ऑल योर एफर्ट्स. डिस्ट्रैक्शन क्लोज कर दें, वाईफाई बंद कर दें, टीवी की आवाज़ बंद कर दें, बल्कि टीवी को स्विच ऑफ कर दें, रूम का दरवाज़ा बंद करें. सिट ऑन योर डेस्क, डोंट सिट ऑन योर बेड, क्योंकि उससे नेचुरली नींद आती है. ये ह्यूमन साइकी है, एक टेंडेंसी है कि आप ऑब्वियसली हमेशा रेस्ट की चीज़ को प्रेफर करते हो. सो सिट ऑन योर वर्क डेस्क. अपने रूम में, अपनी जहाँ पे भी सिटिंग प्लेस है, उसमें कोई एक ऐसी चीज़ रखें जहाँ पे आप लेट नहीं सकते. रिमेंबर, आपने लेटने की जगह पे बैठ के कभी भी पढ़ना नहीं है. कोई भी काम, प्रोडक्टिविटी वाला काम, आपने लेटने की जगह पे, बेडरूम में प्रेफरेबली ना करें. लेकिन अगर बेडरूम में ही आपका सारा सेटअप है और कोई जगह नहीं है घर में, या आपको नहीं अच्छी लगती, तो आप वहाँ पे एक चेयर और टेबल छोटी सी ज़रूर रखें, या कोई भी ऐसा कॉर्नर सेट कर लें जहाँ पे आपको पता हो कि यहाँ पे सिर्फ काम करने की जगह है. टाइमर आपने ऑन किया, आपने डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म कर दी, सारी कट कर दी, एंड यू नो कि जस्ट फॉर 25 मिनट्स हैं, तो आपका ब्रेन भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है. उसको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको एक्सेप्ट करने में, बिकॉज यू नो दैट इट्स जस्ट फॉर 25 मिनट्स. 25 मिनट्स आपने रियली उसके ऊपर फोकस करना है कि अच्छा ये काम मैंने करना है, उसके लिए मुझे ऐसे लिखना है. ऐसे के लिए पहले मुझे आउटलाइन बनानी है उसकी, मुझे उसकी थीम बनानी है. थीम का मतलब ये है कि मैं इसमें कौन कौन से आइडियाज़ डिस्कस करूँगा, कितने पैराग्राफ्स होंगे इसमें, मैं इसमें कौन से ट्रांजिशन वर्ड्स लिख सकता हूँ, मैंने इसमें प्रपोजिशन का ख्याल रखना है. ऐसे लिखने के बाद मैंने उसको वेट करना है कि कोई ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक तो नहीं है, एट्सेट्रा. 25 मिनट्स आपने काम किया. 25 मिनट्स के बाद अलार्म रिंग किया, आपने उसको बंद करना है. उसके बाद टेक अ शॉर्ट ब्रेक 5 मिनट की. उस 5 मिनट में या 15 से 30 मिनट की ब्रेक में, जो भी आपका दिल करता है, 5 से लेके 15 से लेके 30 मिनट, 5 से लेके आधे घंटे तक कुछ भी ब्रेक ले लें. ब्रेक में आपने क्या करना है, वो काम करें जो आपको बहुत पसंद है करने के लिए. फॉर एग्जांपल, इंस्टाग्राम पे न्यूज़ फीड देखना पसंद है, वो देख लें. टीवी देखना, न्यूज़ सुनना अच्छा लगता है, वो देख लें.
यूट्यूब पे कोई वीलॉग फॉलो कर रहे हैं तो उसको देख लें, ड्राइंग करते हैं ड्राइंग कर लें मेरी तरह, या खाना पीना करना होता है तो वो कर लें। बेसिकली मतलब क्या है, पूरी दुनिया रिवॉर्ड सिस्टम पे चलती है, हम इंसान रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम पर चलते हैं। अल्लाह ताला ने भी दुनिया में आखिरत का जो निज़ाम एक बनाया, जो जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ ऑल्सो अ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम, ताकि इंसान को जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट रहे, जज़ा के लिए अच्छे काम करे और सज़ा के लिए बुरे कामों से बचे या अनप्रोडक्टिव कामों से बचे जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो आपने अपने आप को उसी टेक्निक से एक्सप्लॉइट करना है, अपने ब्रेन को मैनिपुलेट करना है अपने फ़ायदे के लिए। जब आप 40 डेज़ तक यही प्रैक्टिस करोगे तो आपका ब्रेन खुद ब खुद रीवायर हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू दैट। लेकिन ऑनेस्टली इसको बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म करके इसको फॉलो करना है, आपका ब्रेन खुद रीवायर हो जाएगा प्रोडक्टिविटी के लिए। और आप दिन में 9 घंटे नहीं भी काम कर रहे, नहीं भी पढ़ रहे, 4 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, लेकिन जो पेरेंट्स कहते हैं ना दिल लगा के पढ़ें, ये वो पोमोडोरो टेक्निक आपको दिल लगाने में हेल्प करेगी। आई होप कि ये टेक्निक आप यूज़ करेंगे अपने PWs में भी, अपनी जनरल प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में भी, एंड इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल। बट यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू कट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस एंड फोकस फॉर 25 मिनट्स। उसके बाद आपने जितनी भी ब्रेक लेनी है, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 5 से 10 मिनट से ज़्यादा ब्रेक नहीं लें। 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो, जो दिल करता है, जो बहुत अच्छा लगता है वो करो, उसके बाद फिर वापस आ जाओ वर्क डेस्क पर, फिर 25 मिनट्स का टाइमर लगाओ और फिर काम करो। जब इस तरह चंक्स कर करके आप काम करते हैं तो आपको काम मुश्किल भी ज़्यादा नहीं लगता और इजीली ख़त्म भी हो जाता है। इजीली ख़त्म कैसे हो जाता है? इस तरह से ख़त्म हो जाता है बिकॉज़ हम जितना भी टाइम लगा रहे होते हैं फोकस नहीं कर पा रहे होते। 9 घंटे की जॉब में होते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी बीच में 10 मिनट 15 मिनट, फिर घंटे की ब्रेक, फिर 10 मिनट 15 मिनट, तो ये काम नहीं करना। एक ही दफ़ा जम के काम करें, उसके बाद वर्क हार्ड एंड देन पार्टी हार्ड। I hope this technique becomes really, really useful for you and it's really helpful for you. And I hope you've enjoyed today's lecture. See you soon.